against that? Can you? That's their assessment you have made, and I can't argue against that. Adesh ji, namaskar. Adit ji, namaskar. Thank you very much. I wanted to say only one thing, about this back channel discussion and rumors about World War III. I believe that nuclear powers will be very careful about World War III. The World War III will not be a conventional world war, if you look at it this way, because any country to win will have to resort to nuclear. And once one country goes nuclear, then it is an unstoppable disaster. Then you are looking at a real Armageddon. जो Terminator 3 का जो देखते हैं हम scenario, कि then God knows who takes over. So you are looking at a thing that somewhere along the line, I feel that wisdom will prevail, कि okay, let's not have a nuclear war. But the impact and implication of this scenario of what is going on in the world, look at it this way, we are having too many conflicts. The nature of war has changed. That's what is important. Nature of war has changed, and to that end, I would say that you are going to look at localized attack, suitcase nuclear bomb, suitcase nuclear attack, localized attack. That's what is the fear that I know on reliable sources that New York City fears a nuclear suitcase going out, and there are many people, many millionaires. They have made alternate arrangements. At the drop of a hat, they will literally scamper from there because there is a threat of localized thing. So that's one part which is very important. But coming to another aspect that Sharadji was talking about, he alluded to the Indian election, that he is okay with, BJP losing some elections. Yeah, I'm okay with that too. But my concern is of a different kind. Because what happens now is that we are arriving at a very decisive phase of ideological battle. See, you are looking at a scenario that a certain group of people are using what I call the 3 V's. Vote bank power, street violence, the second V, and third one is victimhood. Everybody is willing to be a drop of a hat victim. Drop of a hat, resort to violence and threaten vote. This is the betanoy of democracy right now. So my question is that if Sharad Pawar makes a statement, or people in the alliance people make the statement which is clearly anti-Hindu, what kind of Hindu votes to bring back a Karnataka experience again? So, we don't abandon our parents and children because they did not do well in a certain exam or in their career choices. They remain so. We steadfastly support them. I am saying only one thing. When you learn from a mistake, or did you not learn from a mistake? What is indeed a big tragedy is that which kind of Hindu actually votes for Congress party, that party which has systematically destroyed all things Hindu in their 60 years of rule. So if we Hindus had patience, hope, aspiration and dream कि कांग्रेस पार्टी कहीं शायद बदल जाए, वो तो नहीं बदले. उनका खेल तो बिल्कुल ओपन है. Who are the people? कौन लोग हैं, ऐसे कौन से हिंदू हैं जो इस कांग्रेस पार्टी को वोट देती है, जिसने आपका हमेशा सर्वनाश ही करना चाहा है? जब सदगुरु और हमारे गुरुओं पे, स्पिरिचुअल लीडर्स पे, गुरुओं को तो छोड़िए, स्पिरिचुअल लीडर्स पे इस तरह के प्रहार होते हैं, कहां है हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच? who is protecting whose freedom of speech? And Congress party is systematically destroying all things Hindu. तो अगर आप कर्नाटका वापस चाहते हैं तो ठीक है, हरियाणा बनाइए. वो इस तरह से आपकी हानि करेंगे वहां पे कि आपकी आवाज दोबारा निकलेगी नहीं. डू यू थिंक 5 साल में वो आपको कर्नाटका में आपका सर उठने देंगे? क्योंकि वो विशेष हैं. खड़गे को देखिए, कांग्रेस पार्टी के जो नकली प्रेसिडेंट हैं, पूरी पार्टी ही नकली है.
तो कांग्रेस पार्टी के जो प्रेसिडेंट खड़गे हैं उन्होंने कहा था कि अगर हमारे पास 20 सीटें और होती तो हम सारे बीजेपी की लीडरशिप को जेल में डाल देते. नाउ टॉक अबाउट रूल ऑफ लॉ. इज दैट व्हाट यू वांट? सो परिवर्तन कीजिए, लेकिन आंख खोल के परिवर्तन करिए ना. दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर हिंदूज टू रियलाइज particularly. दिस इज व्हाट माय कॉल टू द हिंदूज इज. आप पार्टी जिसको भी सपोर्ट करें, लेकिन ये देख लीजिए कि वो बंदा आपकी हानि तो नहीं कर रहा. और अगर आप उस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं जो आपकी निश्चित रूप से हानि करता है, जहां राहुल गांधी को सिर्फ कास्ट सेंसस के अलावा उसके पास कुछ है नहीं. आपने उसकी स्पीच सुनी है कुछ एक दिनों में? कितनी झूठी बातें करता है वो. अगर आप उस पर मुग्ध हो गए हैं और आप चाहते हैं कि बीजेपी ने गलती की कि उस साले को पनिश करो, राहुल को ले आते हैं, शायद वो कुछ करेगा. आपको तो पता है वो क्या करेगा. Do you abandon your child to go and adopt somebody else's child because your child is not doing well enough? That's a question that Hindus need to ask at a granular level. अगर वो सवाल आपने आंख खोल के नहीं सुना, नहीं देखा, नहीं किया, तो भैया ऐसे उस कहते नहीं है कि सनातन अफगानिस्तान, पाकिस्तान, सिंध, कश्मीर, बांग्लादेश में जीवित नहीं है. इंडिया के मैनी कोस्टल एरियाज में, मैनी पॉकेट्स ऑफ इंडिया में सनातन जीवित नहीं है. तो अगर हम इस भ्रम में रहते हैं कि सनातन कभी जा नहीं सकता, यस यू आर राइट, सनातन प्रिंसिपल विल नेवर डाई. बट वेयर विल सनातन लिव? इन अमेरिका मे बी, इन फिजी मे बी, इन सर्टन पार्ट्स ऑफ कैरिबियन मे बी, बट नॉट इन ओवैसीज आंध्रा, not in Oasis Hyderabad, not in Mamta's Bengal, not in Thackeray's Mumbai, not in Bhiwandi, not in Bhavnagar, many places in India where Sanatan doesn't live anymore. This is what the Hindus have to realize. So exit polls of current midterm election being what it is, हार जीत खेल का उसूल है, होगा. आप हर मैच जीत भी नहीं सकते हैं. Or there are other people who become smart to defeat you, which is part of the game. That I'm perfectly fine with. You are Sarajji is totally right कि आप हर चीज नहीं जीत सकते हैं, क्योंकि उसके बाद जब बांध टूटेगा तो आपको बिल्कुल बहा देगा पूरा. लेकिन आप किस समय किसके पास अपने आप को सरेंडर कर रहे हैं, किसको सत्ता दे रहे हैं, ये जरूरी है. क्रिकेट मैच में भी अपोनेंट जीतेगा, आप जीतेंगे, लेकिन किसके खिलाफ हारे वो जानना जरूरी होता है ना. कैसे हारे आप वो जानना जरूरी होता है. दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर इंडियंस एंड आई पर्टिकुलरली से टू हिंदूज ग्लोबली. आई से आप कमला के नाम पे, वो बेचारी का नाम कमला है इसलिए हम उसको वोट करेंगे, तो फिर उषा क्यों भूल गए भाई? तुलसी क्यों भूल गए भाई? विवेक क्यों भूल गए भाई? ये भी तो हिंदू नाम है. और जो कमला के नाम से ज्यादा भार अपने आप में रखते हैं, पर्सनालिटी, कैरेक्टर, इंटेग्रिटी एंड अ पॉलिटिकल एंटिटी, वो भी सोचिए कभी कभी. दैट्स ऑल आई वांट टू से. Usha is the name of vice president's wife. Yes, yes. Republican के. Correct, correct. देश कपूर जी, आप बड़े बेचैनी से सुन रहे हैं, लेकिन बोलना भी बहुत चाहते हैं. ऐड करिए. बेचैनी से सुन रहे नहीं, मैं एक्चुअली वो भाव में बह रहा था जिस तरह से अभी भूति जी जी ऐसे लेके चलते हैं ना लहरों में अपनी बातों में, ऐसे नहीं. बहुत बड़े पावरफुली उन्होंने बयान किया है अपनी बात को, और बिल्कुल सही है. क्योंकि जैसे विभूति जी बोल रहे थे ना कि हमें अभी लगता है कि ये कुछ सब नॉर्मल है, बट लाइक अभी मैं एक बड़ा दर्दनाक पिक्चर थी जो मैंने देखी, फोटोग्राफ ऑफ 3 young boys and 1 father. चमन कोली नाम था उसका. He in Pakistan, the poor Hindu farmer who all 4 of them hung themselves on the tree. वो फोटोग्राफ है. And that is because उसकी वाइफ और अंडर एज डॉटर्स को वहां के जो लोकल उसके नेबर्स थे वो उठा के ले गए. तो 1947 से अभी तक सिर्फ 70 साल हुए.
आपके अगर गलती हो गई तो आपके अपने लाइफ टाइम में ये हो सकता है, आपके बच्चों के लाइफ टाइम में हो सकता है। तो देयर इज नो, कोई गुंजाइश नहीं है इसमें। वो दूसरी साइड को 1 इंच तक नहीं देनी चाहिए, 1 इंच। अगर 1 इंच भी अगर उनको मिल गई, क्योंकि ये बात तय है कि जो ऑपोजिशन है दैट इज नॉट जस्ट एंटी हिंदू, इट्स एंटी इंडिया इटसेल्फ। वो भारत को तोड़ने की बात कर रहे हैं हर बार, हर बात पे। कुछ उन्होंने ऐसा छोड़ा नहीं जिसपे वो नहीं कर रहे। तो ये क्योंकि मैं जब अपनी रिसर्च कर रहा था, मैं यही देख रहा था कि 1946 जो था, August 16, 1946, जब डायरेक्ट एक्शन डे का ऐलान किया था एच.एस. सोहरावर्दी ने इन कैलकाटा, तो उस समय उनके साथ स्टेज पे ज्योति बसु और 2 और कम्युनिस्ट लीडर्स थे। जब उन्होंने कहा जाके मारो हिंदुओं को, तो वो 3 लोग, 3 कम्युनिस्ट लीडर्स उनके साथ थे, स्टेज पे थे। उनको पता था कि क्या हो रहा है, उनको बचा के निकाला गया था। ज्योति बसु gave a statement that was confusing enough to help the Muslim League do whatever it did during the direct action day, जहां एक दिन में 4 से 5 हजार हिंदुओं को मारा गया, एंड इन अ मैटर ऑफ 3 months 40 से 50 हजार लोग मरे। उसको कह रहे थे द ग्रेट कैलकाटा किलिंग। सो उस इंसान को वो सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर बना दिया गया भारत को, और उसने क्या क्या हालत की बंगाल की, वो हम सब अब देख रहे हैं। ऐसा नहीं हुआ कि रूल करने का तरीका चेंज हो गया है। रूल करने का तरीका ममता बनर्जी का एग्जैक्टली वो है जो कम्युनिस्ट पार्टी का था। इनफैक्ट मुझे आज भी याद है जब ममता बनर्जी आई थी, लोग कहते हो कम्युनिस्ट पार्टी, वो कम्युनिस्ट रूल खत्म हो गया। तो मैंने अपने ब्लॉग पे आर्टिकल लिखा था, नथिंग हैज चेंज्ड, only the person has changed, because the modus operandi has not changed and nothing has changed. वो प्रदेश जिसने भारत को, जिसने दुनिया को स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, नेताजी, रविंद्रनाथ टैगोर जैसे लोग दिए, जिन्होंने इतना कुछ किया, वो प्रदेश आज इस स्टेज पे आ बैठा है कि रविंद्रनाथ टैगोर की मूर्तियों पे लोग थूकेंगे, उनको मारेंगे, स्वामी विवेकानंद को उठा के काट के बाहर फेंक देंगे, उनकी वो कोई भी मूर्ति वहां लगी होगी तो। ये हालत है वहां की, एंड दिस इज अ फैक्ट। लेकिन इससे हमें हटना नहीं चाहिए, लेकिन ये बड़ा क्लियर होना चाहिए। अगर हमें चमनकोली में अपना वो परछाई नहीं दिखती, या अपने बच्चों की परछाई नहीं दिखती, तो हमें कुछ फंडामेंटल मिस्टेक है, फंडामेंटल ऑफ है। हमें अंदाजा ही नहीं कि ये दुनिया कैसे चलती है, क्या चलती है और क्या आने वाला है। तो इसलिए 1 इंच भी नहीं दिया जा सकता ऐसे लोगों को जो सब कुछ बर्बाद कर देंगे, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो दे वांट टू रूल ओवर आवर एशेस। This is the situation where we have come to. The sooner we realize, the better it is. And और यहाँ के जो यूएस है, यहाँ के अभी लोगों को ये लेकिन समझना पड़ेगा कि this is the end of the road for democracy. This is the end of the road. जब इतनी सारी फोर्सेस कन्वर्ज कर रही हो towards destruction and towards bringing the normal world to an end, or normal process of world order to an end, तो मेरे हिसाब से जो फ्रिक्शन है वो अपने आप में एक
एक ऐसा एक प्रोसेस वो शुरू करेगी कि एक बहुत तगड़ा वो कहते हैं वलवला आएगा वो क्योंकि मेरे को याद है जब 2008 का टाइम था, मैं हर बार प्रिडिक्शन करता था अपने, मैंने अब बंद कर दिए हैं। मैं हर साल दिसंबर में प्रेडिक्ट करता था कि नेक्स्ट ईयर कैसा रहेगा इंडिया के लिए, पाकिस्तान के लिए, यूएस के लिए। पाकिस्तान के लिए प्रेडिक्ट करना बड़ा आसान था बिकॉज दे आर वेरी प्रिडिक्टेबल सोसाइटी, वो कभी चेंज नहीं होते, उनका दिमाग इज वेरी वेरी प्रेडिक्टेबल। तो पर मैंने इंडिया के लिए मैंने प्रेडिक्ट किया था 2008 के दिसंबर में कि अभी हमें नहीं लगता, पर जिस तरह से इंडिया की सिचुएशन है, सोशियो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन है, मेरे को ये तय है कि अगले 5 साल में नरेंद्र मोदी विल बिकम द प्राइम मिनिस्टर। And I said, okay, if I say this currently, I know that people will, abuse me. But this is, and say it is not possible even, like given the the image of Narendra Modi. But there is no other option. The society, the political scenario created Narendra Modi. Similarly, somebody else will come up. Some other people will come up. Some other forces and groups will come up. Because there is no other way out. And ये भारत की खुशकिस्मती है कि एक नरेंद्र मोदी जैसा समझदार इंसान आया। हिटलर भी आ सकता था, कोई भी आ सकता था। तो कौन इस पूरे सिचुएशन में ये पूरी सिचुएशन किसको उभारेगी इस आगे आने वाले वक्त में, आगे आने वाले समय में, वो पता नहीं है। पर लाइक ये समय जो हम आराम से जी रहे हैं, ये बहुत देर तक रहने वाला है नहीं, एटलीस्ट मुझे नहीं लगता, कम से कम। ये मेरा